अब हम लोग देखेंगे कि बेनिफिशियरी कैसे कोविन में रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन या ऑन स्पॉट, और कैसे वो अपना अपॉइंटमेंट चाहे तो वो बुक कर सकेंगे। Self registration and appointment for 12 to 14 age group. Beneficiary can log into CoWIN from the home page for registration. Enter the mobile number which will be used for registration. This can be existing mobile number of the family member. Enter the one-time password. Now, by clicking on Add Member, you can register the beneficiary by entering name, can be up to 2010 now. So you can enter, say, 2009. Select a valid ID proof from the drop-down list. Enter the ID number and add the beneficiary. So this beneficiary will be registered. यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। तो पहले एक नंबर से 4 लोग रजिस्टर हो सकते थे, बीच में काफी महीने हो गए, अब एक नंबर से 6 लोग रजिस्टर कर सकेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चे 12 से 14 वर्ष के बच्चे के पास मोबाइल हो, तो वो अपने पेरेंट्स का या गार्जियन का मोबाइल नंबर से अपने आप को कोविन में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पास खुद का मोबाइल नंबर होना आवश्यक नहीं है। If you want to add beneficiary whose year of birth is 2010, then you have to enter the name, gender, year of birth 2010. Once this is done, for 2010 born beneficiaries, you have to specify the date of birth as well. जैसे ही वो 2009 का हमने केस देखा, अब 2010 में जो जन्मा है, तो जैसे ही हमने 2010 डाला, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऑप्शन खुल जाएगा। 2009 में डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ पूछ रहा था, मैं 2010 में जैसे ही ईयर ऑफ बर्थ 2010 डाला तो डेट ऑफ बर्थ हमें मिल जाएगा, बगैर डेट ऑफ बर्थ भरे आगे बढ़ने नहीं देगा। Which will be applicable till the current date only. Select the valid ID card and enter the photo ID number. So beneficiary to year 2010 can be now registered on CoWIN. In order to book the appointment, beneficiary can click on schedule, select state and district, and identify the appropriate session for 12 to 14 age group and select the time slot and confirm the appointment. ये हो गया रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग का। अब जब सेशन क्रिएट हो गया है DIO लॉगिन से और अपॉइंटमेंट भी बुक हो गया है, अब सेशन कंडक्ट करना है वैक्सीनेटर के द्वारा। तो वैक्सीनेटर और वेरीफायर के लिए ये वाला पोर्शन जो अब हम देखेंगे वीडियो का, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर आप अच्छे से अपने वेरीफायर्स और वैक्सीनेटर्स को, VO2s को एक्सप्लेन कीजिएगा। वैक्सीनेटर मॉड्यूल for 12 to 14 year age group. Vaccinator can check the session and click on Yet to Start. Further, click on Start the Session and confirm the vaccine name and batch number and initiate the session. Vaccinator will have option for on-site registration as well for 12 to 14 age group.
So अगर कोई बेनिफिशियरी आपने स्कूल से मोबिलाइज करके ले आया, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन में नहीं किया है, तो वैक्सीनेटर मॉड्यूल में भी ये सुविधा पहले से है कि हम बेनिफिशियरी पात्र हितग्राही को हम सेशन साइट में ही हम रजिस्टर करेंगे। वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन वैक्सीनेशन के पहले हम उनका रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे, तो हमारे वैक्सीनेटर वेरीफायर ये चीज कर सकेंगे। Vaccinator, as usual, click on on-site registration, enter the name, gender, year of birth, say 2009, enter the mobile number and further confirm it. Enter a valid photo ID proof and subsequently mention the photo ID number. Specify the type of recipient and then click on continue. Beneficiary will receive one-time password. Upon entering, he or she will be successfully registered. Vaccinator can also register beneficiary who are born in the year 2010. You have to enter name, select gender. For year of birth 2010, in this case, the vaccinator and the beneficiary has to specify the date of birth as well. And they can select the date of birth and register for the beneficiaries who are 12 years old as of the date of the vaccination. Further, select the photo identity number, type of recipient, enter the OTP, and register the beneficiary. In order to vaccinate the beneficiary, vaccinator select the beneficiary, click on the beneficiary detail, perform the process of verification. It can be with Aadhaar or entering photo ID number, and last 4 digits of reference ID. Once the beneficiary is verified, vaccinator can click on Verified tab, select the beneficiary, and confirm that the beneficiary is vaccinated. Subsequently, the certificate of vaccination is generated and can be handed over to the beneficiary. ये काफी सिंपल और स्टेप बाय स्टेप कोविन सिस्टम में अलग अलग जो स्टेप्स है, प्रोसेस फ्लो है, सेशन क्रिएशन से लेकर के सेल्फ रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, इसके अलावा कैसे सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, वैक्सीनेटर कैसे सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, ये सब स्टेप्स जो है इस वीडियो में दिया हुआ है। सो इस वीडियो में रेलेवेंट जो पोर्शन है, जैसे सेशन क्रिएशन के बारे में आप वैक्सीनेटर वेरीफायर को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उनके डोमेन या उनके अंदर की चीज नहीं है। ये चीज अगर आप उनको बताएंगे तो वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सो उनसे रिलेटेड जो पोर्शन है, सेशन में कैसे हम ऑन साइट रजिस्टर करेंगे, सेशन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड और अपॉइंटमेंट बुक किए हुए बेनिफिशियरीज को कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम उनको वेरीफाई करेंगे उसके फोटो आईडी प्रूफ से, चाहे वो आधार हो, राशन कार्ड हो या स्टूडेंट आईडी हो, कैसे वेरिफिकेशन के बाद उनका फोटो आईडी हम अपलोड करेंगे, कैसे उनको हम वैक्सीनेशन स्टेटस दिखाएंगे वैक्सीन लग जाने के बाद। जनरली वेरीफाई तो करते हैं, वैक्सीनेट करना कोविन में छूट जाता है, उसीलिए ये अक्सर आप लोगों का शिकायत रहता है कि हमने तो वैक्सीनेट किया, हमारा कवरेज कम कैसे दिख रहा है। तो वेरिफिकेशन के बाद आपने स्टेप्स देखा कि वैक्सीनेशन भी दिखाना है, फिजिकली तो इंजेक्शन लग गई है,
बट वैक्सीनेशन हुआ है ये भी कोविन में दिखाना, कंफर्म जो करना होता है। और उसके बाद कैसे हम सर्टिफिकेट को जनरेट करेंगे, सर्टिफिकेट का आइकन दिखने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो बहुत ही सिंपल है, नया कुछ भी नहीं है। नया सिर्फ यही है कि वैक्सीन नया है। दूसरा नया बात ये है कि ये सिर्फ 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यूज करना है। तीसरी बात ये है कि ईयर ऑफ बर्थ अगर हम 2010 एंटर करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भी पूछेगा। सो डेट ऑफ बर्थ में आप एडवांस के मतलब 15 मार्च के आगे का डेट यूज नहीं कर पाएंगे आज, कल आप कर पाएंगे 16 मार्च 2010, उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेगा। तो 12 वर्ष पूर्ण होना बहुत ही मैंडेटरी, उससे नीचे को नहीं वैक्सीन देना। 14 साल 10 दिन हो गया, 14 साल 2 महीना हुआ है, ऐसे बच्चों को आप कोर्बेवैक्स दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे। 2008 में जो जन्मे हैं जनवरी से लेकर के 15 मार्च तक, उनकी उम्र 14 प्लस ही होगी। तो डॉक्टर हल्दर सर ने क्लियरली ये बता दिया है कि उनको आप कोर्बेवैक्स ही देंगे, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ईयर ऑफ बर्थ पे ही आपको ध्यान देना है। 2008 और 9 ईयर ऑफ बर्थ अगर है तो कोर्बेवैक्स। 2010 में आपको डेट ऑफ बर्थ पे भी ध्यान देना, क्योंकि 12 साल हुआ है कि नहीं ये डेट ऑफ बर्थ से ही डिसाइड होगा। तो ईयर ऑफ बर्थ के अलावा डेट ऑफ बर्थ भी इसमें ध्यान देना। बस इतनी सी चीज है, बाकी जितने स्टेप्स हैं वो पुराने हैं, नए कुछ भी नहीं है।